شہرنامے میں آپ کو خوش آمدید۔ تفصیلی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے اور جرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے آئی جی پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ملاقات کی۔ صوبے میں امن و امان کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تھانہ کلچر تبدیل ہونا چاہیے، پولیس کو حقیقی معنوں میں عوام کا مددگار ہونا چاہیے۔ صوبے میں امن و امان کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ صوبے میں اس موقع کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع کے حوالے سے حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ ضلع خانے وال کو اسموگ اور آلودگی سے پاک کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری اور سیکرٹری RTA مہر زائد حسن کی جانب سے شہریوں اور مسافروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ماسک تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے ڈپٹی بیورو چیف عامر نصیر سے۔ جی عامر، آگاہ کیجیے گا۔ ضلع خانیوال کو اسموگ سے پاک کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے شہریوں میں ماسک تقسیم کیے ہیں۔ یہاں پہ دعا چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو بات کر ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری صاحب کہے گا دعا چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپ روزانہ کی بنیاد پہ کارروائی کریں۔ آج آپ نے کیمپ لگایا ہے، ماسک تقسیم کیا، کیا کریں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسموگ کا جو مقابلہ ہے اس کی ایک جنگ ہے بڑی، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ہمیں اس کے اندر مسلسل جدوجہد کرنی ہے۔ اور ایک جو بنیادی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے وہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے، جس میں نو کمپرومائز والی پوزیشن ہے۔ کریک ڈاؤن ہمارا شروع ہے اور آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے 12 پبلک ٹرانسپورٹ کے وہیکلز کو امپاؤنڈ کیا گیا ہے، جرمانے کیے گئے ہیں اور 24,000 سے زیادہ 28,000 کے قریب میرے خیال ہے آج جرمانہ کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ ایکٹیویٹی انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ہم بھٹوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا 16 کے قریب بھٹے اب ہم مسمار کر چکے ہیں، ڈیمولش کر چکے ہیں۔ جو پبلک ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں وہاں پر یہ اسموگ آگاہی کاؤنٹرز موجود ہیں، سین کیا جاتا ہے۔ میں خود یہاں پر آیا ہوں، AC صاحبہ نے کیا ہے، DPO صاحب نے کیے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں، دعا چھوڑنے والی گاڑیوں کو جرمانہ بھی کیا جا رہا ہے اور تھانہ کو بند کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جگ جاگ کے بغیر اینٹوں کے بھٹے چل رہے ہیں ان کے خلاف بھی روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ شہریوں سے التماس ہے کہ اپنے کوڑا کرکٹ کو آگ مت لگائیں، اگر وہ آگ لگائیں گے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی نوشہر و فیروز میں آوارہ کتوں کی بہتات نے شہریوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کیڈٹ کالج گھوٹکی میں سالانہ اسپورٹس ویک کا انعقاد کیا گیا۔ اسپورٹس ویک کی تقریب میں کیڈٹس کے والدین سمیت بڑی تعداد میں اساتذہ اور کیڈٹس نے شرکت کی۔ اسی پر مزید دیکھتے ہیں گھوٹکی سے رانا اقبال کی رپورٹ۔ کیڈٹ کالج گھوٹکی کی جانب سے سالانہ اسپورٹس ویک کا انعقاد کیا گیا۔ اسپورٹس ویک کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر سردار محمد بخش خان مار تھے، جبکہ ان کے ہمراہ DC گھوٹکی سید محمد علی زیدی، AC گھوٹکی عامر شکر ججا، AC میرپور ماتلو بابر علی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کیڈٹ کالج کے پرنسپل بریگیڈیئر احمد علی خان اور ایڈمن فرمان علی اربانی نے تمام مہمانوں کا استقبال کیا، جبکہ بریگیڈیئر احمد علی خان نے صوبائی وزیر سردار محمد بخش خان مار کو شیلڈ بھی پیش کی۔ کیڈٹ کی جانب سے مہمانوں کو سلامی بھی پیش کی اور اسپورٹس کے مقابلوں کے جوہر بھی دکھائے، جس پر صوبائی وزیر سردار محمد بخش خان مار اور DC گھوٹکی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیڈٹ کالج گھوٹکی میں ہم آج یہاں موجود ہیں اور جو انٹر ہاؤس کمپٹیشن سے 2025 وہ دیکھنے آئے اور I'm very happy to see۔ ایک تو مجھے انفراسٹرکچر بھی بڑا اچھا لگا، کچھ چیزیں انڈر گوئنگ ہیں، کچھ اسکیمز اس کو ہم اسپیڈ اپ کریں گے انشاءاللہ، لیکن ساتھ ساتھ جو ایک جوش تھا سب اسٹوڈنٹس میں، اور یہ بڑا اچھا لگا کہ آج کل آپ کو بہت سارے اسپورٹس نظر آئیں گے، لیکن خاص طور پہ کرکٹ اور فٹ بال زیادہ نظر آئے گا، والی بال، لیکن ایتھلیٹکس نہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ یہاں بڑا اچھا مجھے آئی تھنک میں پرنسپل صاحب سے بھی کہوں گا کہ ہمیں یہاں پہ ایک ایتھلیٹک ٹریک بھی بنانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کیڈٹ کالج کا جب بھی نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ہماری پاک افواج جو کہ ہم شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے اپنے قیمتی جانوں کی قربانی دیتی آئی ہیں ان کا آتا ہے، اور جہاں پاک افواج کا آتا ہے تو وہاں پہ ڈسپلن کا نام آتا ہے، وہاں پہ صحت مندانہ ایکٹیویٹیز کا نام آتا ہے۔ تو یہ سردیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح موقع پہ ایک بڑا ایونٹ آرگنائز ہو رہا ہے جہاں پہ
تو یہاں پہ لوکل کیڈٹس ہیں ان کے لیے ایک مقابلہ کرایا جا رہا ہے جس سے نہ صرف ان کی صحت بہتر ہوگی بلکہ ان کے اندر ایک ہیلدی کمپٹیشن کی ایک اسپرٹ آئے. اس موقع پر ڈاکٹر سجاد احمد مار، ڈاکٹر ہینا سمیت سول سوسائٹی کیڈٹ کے والدین نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر بریگیڈیئر ایم علی خان نے کہا کہ کیڈٹ کالج گھوٹکی نے ہمیشہ گھوٹکی اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے پاک فوج کے شہدا اور دیگر فورسز کے شہدا کے بچوں کو ہمیشہ ترجیح دی ہے اور دیتے رہیں گے. کیمرامین ٹیم کیمرہ رانا اقبال، میٹرو ون نیوز، گھوٹکی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، جلد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ نوشہر فیروز میں آوارہ کتوں کی بہتات نے شہریوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل کر دیا ہے. نوشہر فیروز ٹاؤن کمیٹی میں آوارہ کتے نے بچے پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا. بچے کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا. اہل خانہ کے مطابق علاقے میں کتوں کے خاتمے کے لیے کئی بار انتظامیہ کو درخواست دی گئی ہے مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. کیرول پکا میں بھی کئی دن سے مسلسل اسموک کا راج برقرار ہے. شہری اسموک کے باعث نزلہ، کھانسی، زکام اور اس کے علاوہ آنکھوں میں جلن سمیت سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. مزید جانتے ہیں کیرول پکا سے حسنین خان رن کی یہ رپورٹ. کیرول پکا میں بھی مسلسل کئی روز سے اسموک کا راج برقرار ہے. اسموک کے باعث کیرول پکا کے شہری شدید پریشان ہیں. اے روز شہری اسموک کے باعث نزلہ، زکام، کھانسی اور اس کے علاوہ آنکھوں میں جلن سمیت سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر نہ کریں، اپنے جسم کو گرم کپڑوں سے ڈھانپ کر رکھیں. جبکہ تحصیل انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو اسموک سے بچنے کے لیے آگاہی مہم بھی جاری ہے اور اس کے علاوہ تحصیل انتظامیہ کی جانب سے اسموک کے تدارک کے لیے بھٹا مالکان کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں اور اس کے علاوہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگا کر اسموک کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ اسموک سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کی بیماریوں سے بچا جا سکے. کیمرہ ٹیم عمران پی کے ساتھ حسنین خرند، میٹرو ون نیوز، کیرول پکا. میرپور خاص کے مسائل کے حل کے لیے اراکین قومی اسمبلی پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی اور میر منور تالپور کی صدارت میں دربار بال میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں اراکین صوبائی اسمبلی، ڈپٹی کمشنر، میئر عبدالرؤف غوری، پرو وائس چانسلر یونیورسٹی، محکمہ صحت، تعلیم، LBOD، آبپاشی، سپرنٹینڈنٹ انجینئر، پروفیشنل روڈ، پبلک ہیلتھ، زراعت، کالجز اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی. اس موقع پر MNAs پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی اور میر منور تالپور نے کہا کہ تمام محکموں کے افسران اپنی کارکردگی بہتر بنا کر عوام کو فائدہ پہنچانے میں اپنا فعال کردار ادا کریں تاکہ عوام کے دیرینہ مسائل اور شکایات کا ازالہ ہو سکے. انہوں نے مزید کہا کہ چھوٹے زمینداروں، کاشتکاروں کی جانب سے نقلی زرعی کھاد، بیج اور ادویات اور بلیک پر کھاد فروخت کرنے کی شکایت موصول ہوئی ہیں جس کی روک تھام کے لیے محکمہ زراعت اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے ڈیلروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور کہا کہ چھوٹے کاشتکاروں کو جلد بے نظیر ہاری کارڈ فراہم کیا جائے. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد کی ریونیو عملے کو آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ کارکردگی میں بہتری لائی جائے، ریونیو ایشوز میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. مزید دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف شیخ رمضان ندیم کی رپورٹ. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد نے ریونیو سٹاف افسران کے ایک اہم اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریونیو سٹاف کو زیر التوا انتقالات کھیوٹ ایشوز کو فوری نمٹانا پڑے گا. انتقالات کی پیروی نہ کرنے والے شہریوں کے کیسز خارج کیے جائیں گے. ریونیو عملہ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں، ریونیو امور میں بہتری لانی ہوگی. آبیانہ زرعی انکم ٹیکس، FBR ٹیکس کی ریکوریوں کو یقینی بنایا جائے. کھیوٹ، حد بندی، انتقالات، رجسٹریوں و دیگر امور میں پرفارمنس نظر آنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ موضوع وائز پرفارما بنا کر روزانہ ریونیو عملہ کی کارکردگی کو چیک کیا جائے گا. ریونیو ایشوز میں مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. مسنگ رجسٹریوں کے لیے ریونیو بورڈ آف ریونیو سے ہدایت لی جائیں. ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ناقص کارکردگی والوں کو آخری موقع دے رہا ہوں. اجلاس میں DCR نعمان فاروق تالڑ، اسسٹنٹ کمشنر تیمور عثمان،
जाहिद इकबाल, फरूख जावेद, चौधरी मंजूर, मोहम्मद शाहिद रेवेन्यू अफसरान शरीक थे। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डेरा गजी खान। खैरपुर, नवाबशाह और सक्खर से मिलाने वाली वाहिद एक ही सड़क है जो नौशहरा फरोज़ के इलाका बरिया रोड के जो गुज़िश्ता कई सालों से इंतज़ामी गफलत के बायस टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस आए रोज़ हादसात और डकैतियाँ इससे रोड पर रोज़ का मामूल बना हुआ है, जिसके बायस शहरी मुख्तलिफ परेशानियों से दो चार हैं। मज़ीद जानते हैं नौशहरा फरोज़ से अपने नुमाइंदा फ़कीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिरिया रोड से खैरपुर, नवाबशाह, सक्खर और सिंध के दीगर इलाकों से मिलाने वाली वाहिद एक सड़क है जो मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है। इस हवाले से शहरियों ने मेट्रो वन न्यूज की टीम को बताया कि तकरीबन 15 मिनट का सफर है जो हम 1.5 घंटे में करते हैं, और गाड़ियों को तो वैसे ही सत्यानाश हो चुका है, वो अपनी जगह है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं मिनिस्टर साहबान को कि बराए करम हमारे रोड पे नजर डालें और हमें रोड बना के दे दें। टूटी फूटी सड़क पर रेस्क्यू 111 और 22 एम्बुलेंस के ड्राइवर ने भी हुकूमत से अपील करते हुए बताया कि जनाब ये जो सड़क है काफ़ी टाइम से ख़राब है। अभी यहाँ के गांव के इलाके सादा आदमी में यहाँ पे कोई मेडिकल की सपोर्ट नहीं है, कोई गाड़ी जाती नहीं है। यहाँ पे अभी मैं पेशेंट लेने आया हूँ तो मुझे 2 घंटे लग गए हैं। दूर दराज इलाकों से स्कूल आने जाने वाले तमाम स्कूली शागिर्दों को भी टूटी फूटी सड़क से कई परेशानियां हैं। हम स्कूल जाते हैं, हमारा गाड़ी पंचर होता है और रोज गाड़ी पंचर होता है, टाइम से भी पहुंच नहीं सकते स्कूल। 10 मिनट का सफर है अगर सही रोड हो तो, भी घंटा से ज्यादा लग जाता है। बस क्या पता, अब देखें हमारी हयाती में तो मुश्किल है, ये नहीं बनेगा। हुकूमत सिंध से तमाम मुसाफिरों समेत इलाकाई शहरियों ने अपील करते हुए कहा कि जितना जल्दी हो सके इस रोड को तामीर किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद तस्लीम के साथ फकीर हुसैन, मेट्रो वन न्यूज, बिरिया सिटी, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फरोज। खानका डोगरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख के हुक्म पर पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करके एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। आपको बताते चलें कि खानका डोगरा में पुलिस ने मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग करते हुए मनशियात फरोश मुलजिम को हिरासत में ले लिया। कब्जे से 1 किलोग्राम चरस कब्जे में ले ली गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मनशियात फरोशी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा है कि ज़िला भर में डेंगू से बचाव के लिए महकमा सेहत पंजाब की जानिब से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि इंसदाद डेंगू कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि डेंगू सर्विलेंस टीमें हर यूनियन काउंसिल में मुतहरिक हैं और घर घर जाकर सर्विलेंस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। टीमों की कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए एंड्रॉयड ऐप के ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर सरगर्मियाँ अपलोड की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू सर्विलेंस की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि तहसीली सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर खुद फील्ड में मौजूद हैं और डेंगू हॉटस्पॉट जैसे शादी हॉल्स, फैक्ट्रीज, ज़ेर तामीर इमारतें, नर्सरियाँ, पार्क्स, टायर शॉप्स, कब्रिस्तान वगैरह की सख्त निगरानी कर रहे हैं। कमर्शियल मकामात से डेंगू लार्वा बरामद होने की सूरत हाल में मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कसूर में मौसम सरमा के शुरू होते ही मछली मंडी में खरीदारों का रश लग गया। मछली 500 से 600 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल मछली के दाम में भी इजाफा हुआ है। कसूर से देखते हैं अली अहमद मुगल की ये रिपोर्ट। कसूर मौसम सरमा के आते ही मछली की मांग में इजाफा हो गया। मछली मंडी में खरीदारों का रश लग गया। बढ़ती हुई महंगाई ने मछली भी शहरियों से दूर कर दी। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल मछली के दाम में भी इजाफा हुआ है, लेकिन शहरी फिर भी मछली की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दी में मछली ना खाई जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। रेट चेक करते हैं तो पिछले साल नालों रेट थोड़े ਜਿਹੇ ज़्यादा लगते हैं, लेकिन चलो असी लैनी तो है, लैके चले हैं, हुण खावांगे इंशाल्लाह, इंजॉय करांगे। कसूर की बहुत सोहनी तो बड़ी ताज़ा मच्छी है। मछली फरोश का कहना है कि रोज़ कई तरह की मछली मंडी में आती है, जिसमें काला रहू, फार्मी, शिंगारी और दीगर इकसाम की मछली शामिल है। जी हमारे पास कसूर की स्पेशल रोहू मछली होती है, थैला मछली होती है, इसके बाद दरिया सतलुज की गुलफाम मछली होती है, शिंगारी होती है, सोल होती है, मली होती है और कई किस्म की मछली आती है। माशाल्लाह सीज़न स्टार्ट हो गया है, इसलिए लोगों का ध्यान ज़्यादा मछली की तरफ है, तो मछली बेस्ट है, इसमें विटामिन होते हैं, खानी चाहिए।
कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। अब रुख करते हैं नारवाल का। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के खुसूसी अहकामात की रोशनी और डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा की हिदायत पर ज़िला नारवाल में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में सेहत दुश्मन और ज़ायदुल मयाद अशिया इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी टीम की शकरगढ़ और जफरवाल में बड़ी कार्रवाइयाँ की गईं। आपको बताते चलें कि शकरगढ़ और जफरवाल में दौरान चेकिंग मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों के बच्चों के खाने वाले पापड़, टॉफ़ियाँ, निम्को और लॉलीपॉप्स ज़ायदुल मयाद अशिया बेचने वालों को मौके पर पकड़ लिया। बच्चों के खाने वाली चीज़ें ज़ायदुल मयाद होने पर 650 किलोग्राम ज़ायदुल मयाद अशिया को मौके पर तल्फ कर दिया गया और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। पतोकी शहर और गिरदोनवा में स्मोक का राज बरकरार है। शदीद स्मोक और धुंध से हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी हादसात से बचने के लिए फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। सियालकोट में सेहत दुश्मन अनासर की शामत आ गई। डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब आसिम जावेद की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों ने हेड मरला में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। फूड पॉइंट्स की चेकिंग 14 के दौरान 1,30,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। भारी मिकदार में ऑयल और बदबूदार गोश्त तल्फ कर दिया गया। डीपीओ भावल नगर की तरफ से पुलिस थाना फकीरवाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीएसपी और एसएचओस की मौजूदगी में डीपीओ नसीबुल्ला खान ने साइलिन की शिकायत सुनी और उनके हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। आपको बताते चलें कि आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक पंजाब भर में साइलिन को इंसाफ की फरहमी और साइलिन की शिकायत सुनी और उनके फौरी हल के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में साइलिन ने डीपीओ नसीबुल्ला खान के सामने पेश होकर अपने मसाइल सुनाए, जिनके फौरी हल के लिए डीपीओ नसीबुल्ला खान की तरफ से मुतल्लिका पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए गए। इस मौके पर डीपीओ नसीबुल्ला खान का कहना था कि तमाम मसाइल को सुनने के बाद उनको मेरिट पर हल किया जाएगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस कबीरवाला का दफ्तर मैदान जंग बन गया। आपको बताते चलें कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में अमला आपस में गुत्थम गुत्ता हो गया, थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। झगड़े की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें अमले को आपस में लड़ता हुआ देखा जा सकता है। पाकपतन में बढ़ती हुई स्मोक के बायस शहरी सांस और आंखों के मर्ज में मुब्तला होने लगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में स्मोक से मुतासरा अफराद के लिए इमरजेंसी वार्ड कायम कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ जरीन खान। पाकपतन शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में स्मोक बढ़ गई। फिजा आलूदा होने से शहरी आंख और सांस समेत दीगर अमराज में मुब्तला होने लगे। इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हंगामी इंतजामात करते हुए स्मोक मुतासिरीन के लिए वार्ड मुख्तस कर दिया। स्मोक के हवाले से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं छाती के इन्फेक्शन आ रहे हैं। जो बूढ़े बंदे हैं जिनको ऑलरेडी COPD के मरीज़ हैं, उनकी सांस उनका ख़राब हो रहा है। छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनका सांस ख़राब हो रहा है, जिसको हम मैनेज करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह DHQ हॉस्पिटल पाकपतन में हम तमाम सहूलियात फ्री दे रहे हैं। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर यूनुस का कहना है कि स्मोक से मुतासर अफराद को तमाम टेस्ट और अद्वियात की मुफ्त फराहमी यकीन बनाई गई है। एमरजेंसी में हम तमाम सहूलियात, तमाम अद्वियात सब फ्री दे रहे हैं और तमाम जो छाती से रिलेटेड हैं, जिसमें एक्सरे आते हैं, ब्लड टेस्ट आते हैं, वो सब तमाम हम फ्री करवा रहे हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि शहरी स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और घर से निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ आतिफ जहीन खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। मज़ीद खबरों को भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रुझान में फ़ज़ाए आलूदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। रुझान शहरों गिरदनवाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स 495 तक पहुंच गया है। शदीद धुंध से हद निगाह 0 हो गई है। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक रवानी में मुश्किलात का सामना देखना पड़ रहा है। रुझान में बच्चों में तालीमी शऊर उजागर करने के लिए गवर्नमेंट एसोसिएशन एट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस और दीगर शुरा ने ज़ेर तालीम बच्चों को इल्म और तदरीस की अहमियत के बारे में आगाह किया। मज़ीद देखते हैं फौज अली मज़ारी की इस रिपोर्ट में। पंजाब के आखिरी तहसील रुझान के गवर्नमेंट एसोसिएट डिग्री कॉलेज में बरसों से मुतासर तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने लगी। कॉलेज में तलबा को तालीम के असूल में दरपेश मुश्किलात दूर करने के लिए टीचर्स समेत दीगर सहूलियत फराहम कर दी गई हैं। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज रुझान का विज़िट किया और नए CTIs की जो हमने इंडक्शन की थी उनकी मॉनिटरिंग की और तमाम टीचर अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। और तवील अरसा के बाद बाकायदा दरसगाह खुलने से इलाके के बच्चे भी परजोश हैं, जबकि मुख्तलिफ सब्जेक्ट में महारत रखने वाले टीचर्स ने तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। वो रेगुलर यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे नए टीचर्स की भर्ती भी हो चुकी है। तो अब मैं पूरे रुझान वालों को कहना चाहता हूँ कि आप पूरे स्टूडेंट को कि आप आएँ, कॉलेज आएँ, रेगुलर क्लासेस लें। यहाँ अगर रुझान जैसे पसमानदा इलाके के बच्चों को बेहतर तालीमी मौके फराहम किए जाएँ तो यही बच्चे पढ़ लिख कर मुल्क को कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ फौज अली मज़ारी, मेट्रो 1 न्यूज़ रुझान। दीना में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के नुकसानात से आगाही के लिए वॉक का इनेकाद किया गया। आपको बताते चलें कि दीना में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के नुकसानात से बचाव के लिए महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम और DHO इरशाद तनो की ज़ेर क़यादत आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। महकमा सेहत के हुकाम और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर दीना सईदा डोगर ने भी खुसूसी शिरकत की और शहरियों को हिफाजती इक़दाम अपनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि स्मोक और आलूदगी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना नहायत ज़रूरी है। वॉक के अख्तिताम पर शहरियों ने आगाही पम्फलेट्स और मास्क भी तकसीम किए ताकि वो हिफाजती तदाबीर को अपनाएं और आलूदगी के असरात से महफूज रह सकें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक खेलता पंजाब गेम्स के ज़िले मुकाबले अख्तिताम पजीर हो गए। 14 रोज़ा मुकाबलों में 1456 खिलाड़ियों ने 6 गेम्स में हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राजा जावेद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक खेलता पंजाब गेम्स के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। इन मुकाबलों में 1456 खिलाड़ियों ने 6 गेम्स में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने कामयाब खिलाड़ियों और टीमों में इनामात, चेक और ट्रॉफियां तकसीम की। खेलता पंजाब गेम्स 2024 CM पंजाब का विजन है कि माशरे के अंदर हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ज़रिए हेल्दी फिजिकल एक्टिविटीज़ को फ़रोग दिया जाए, जिससे न सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का फ़रोग हासिल होगा, बल्कि वो एक सेहतमंदाना माशरे के अंदर सरगर्मियों को भी फ़रोग मिलता है। जी, बड़ी खुशी की बात है कि ये इस तरह से पूरे पाकिस्तान में खेलों का इनकाद हो रहा है और बहुत सारे खिलाड़ी हमारे सामने आ रहे हैं। न्यू टैलेंट हंट है ये एक किस्म का, और हमारे जितने भी प्लेयर हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें और खानेवाल डिस्ट्रिक्ट जाके इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलें और पाकिस्तान तक जाएँ और मुल्क का नाम रोशन करें। खेलता पंजाब गेम्स के इनकाद से न सिर्फ बासलाहियत खिलाड़ी सामने आए हैं बल्कि जिला सतह पर खेलों को फरोग हासिल हुआ है। राना जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। DPO कसूर की थाना मुस्तफ़ाबाद में खुली कचहरी। DPO ने अवामी मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं साजिद महमूद खान की इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ख़ुसूसी अहकामात की रोशनी में DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सुकेरा ने थाना मुस्तफ़ाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO कसूर के साथ DSP खालिद असलम जठौल भी खुली कचहरी में मौजूद थे। थाना मुस्तफ़ाबाद पहुंचने पर SHO हसन इमरान सैयद ने अपनी टीम के हमरा उनका इस्तकबाल किया। खुली कचहरी के मौका पर इलाका के अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। कचहरी में DPO कसूर ने अवाम की शिकायत सुनी और मौका पर उनके लिए अहकामात जारी किए। DPO कसूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि CM साहबा की डायरेक्शन पे और IG साहब की नीयत के मुताबिक हम DPO साहिबान हैं वो अपने अपने अजला में खुली कचहरियों का इनेकाद कर रहे हैं और उसका मकसद ये है कि हम अपने थानों में जाएं, वहाँ पर जो SIPS के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एक हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स और इसकी जो मेंटेनेंस है उसका भी जायज़ा लिया जाए, इंस्पेक्शन की जाए, साथ साथ जो साइडिंग है उनके थाने पे उनकी बात सुनी जाए और नाते से की जाए। खुली कचहरियों के निकाह से जहां अवाम का अफसरान के साथ रब्ता मुमकिन होता है वहां हसूल इंसाफ में भी मुआवन साबित होता है। समाजी कारकुन जुहेब उर्फ लाला सद्दाम को मामूली तल्ख कलामी पर दिन दहाड़े सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से आयशा मलिक की इस रिपोर्ट में। मुझे नहीं बोलना मेरा बेटा, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, उसे बच्चे छोटे चाहिए, बच्चे का इंसाफ चाहिए। थाना शालीमार लाल शाह रोड के रिहायशी समाजी कारकुन जुहेब उर्फ लाला सद्दाम को मामूली रंजिश पर दिन दिहाड़े शदीद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। बदनामी जमाना मनशात फरोश असलहा स्मगलर सद्दाम खान और बख्तियार खान की वक़ुआ के कुछ रोज कबल समाजी कारकुन जुहेब उर्फ लाला सद्दाम से कुछ पैसों के एवज तल्ख कलामी हुई और ये मामूली तल्ख कलामी एक दुश्मनी में बदल गई। वक़ुए के 2 रोज कबल सद्दाम खान और बख्तियार खान अपने मुकम्मल गैंग के साथ जदीद असलहे से लेस समाजी कारकुन जुहेब उर्फ लाला सद्दाम के घर धावा बोल देते हैं और शदीद फायरिंग भी की जाती है। ये सारा मंजर कैमरे की आंख महफूज कर लेती है, जिस पर थाना शालीमार पुलिस हरकत में आती है और सद्दाम खान और बख्तियार खान गैंग पर मुकदमा जुर्म 440 रजिस्टर्ड हो जाता है। 25-30 होंडे भेजे हैं, उन्होंने फायरिंग की है, ठीक है ना। फायरिंग के बाद उन्होंने दूसरे दिन यानी कि सुलह के लिए बुलाया है। सुलह करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने घेरा डाल के उनको गोली मार दी। शूटर कौन से हैं, अभी भी चक्कर लगाते हैं, आम लोग हैं, घूरके से देखते हैं फिर चले जाते हैं, तो वहाँ कौन सी खौफ आती है। इस वक़ुए के 2 रोज बाद थाना कुचरपुरा में दर्ज होने वाली FIR के मुताबिक समाजी कारकुन जुहेब और लाला सद्दाम अपने वालिद और 2 भाइयों के साथ किसी जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जाता है तो ब्लॉक A2 चाइना स्कीम गुजरपुरा में उनका सामना सद्दाम खान और बख्तियार खान गैंग से हो जाता है। इस गैंग ने समाजी कारकुन जुहेब और लाला सद्दाम पर फायरिंग कर देते हैं और उनकी फायरिंग से लाला सद्दाम मौका पर ही दम तोड़ देता है और भाई कैसर मुगल शदीद जख्मी हो जाता है। 32 साल समाजी कारकुन जुहेब उर्फ लाला सद्दाम की मौत से अहले इलाका में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। भाई नूं छड़ाण गया वे ते भाई नूं भी इधर आके फायरिंग लगी है। सद्दाम नूं तो मौके ते कत्ल कर फायर कर दिता। बहुत अच्छा बंदा सी, बहुत ही खुदार सी, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੜ ਮਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ। अपने 14 साल बेटे की मौत पर वालिदैन गम से निढाल हैं और हुक्मरानों से इंसाफ की अपील करते हैं। जो जराइम पेशा लोग हैं, इस्लाम भी बेचते हैं और चर्च भी बेचते हैं, सब कुछ ये काम करते हैं और मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं देख नहीं सकती, मुझे नहीं बोल रहा मेरा बेटा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे घर की रौनक था वो घर में आ जाता था, 4 पैर मेरे घर में हो जाती थी, अब मेरा घर खत्म हो गया है। ये रास्ते में उधर बैठे हुए थे, इन्होंने ज़्यादा ना फायरिंग शुरू कर दी है। मेरे बेटे को इन्होंने उधर ही फायर मार दिया। एक मेरे बच्चे को टांग पे लगा, उनको इट्टें मारी, मैं था साथ में, मैं भाग गया उधर से। 2 बेटे थे मेरे साथ, हम उधर साइड में मैं निकल गया तो मैं बच गया। 14 साल नौजवान के कत्ल के बाद उसके बूढ़े वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और CCPO लाहौर से अपील की है कि मेरे बेटे के कातलों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। कैमरामैन लतीफ़ के साथ आयशा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़ लाहौर। जहन की परफॉर्मेंस को तेज़ करने के लिए हिप्नोथेरेपी एक जदीद और मौसर तरीका इलाज है। इंसानी लाशऊर तक रसाई हासिल करके मुश्किलात पैदा करने वाले मुहर्रिकात को जड़ से निकाल फेंका जाता है, जिससे जहन को सुकून मिलता है और दिल अपनी खोई हुई खुशी भर से हासिल कर पाता है।
तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जहन की परफॉर्मेंस को तेज करने के लिए हिप्नोथेरेपी एक जदीद और मौसर तरीका इलाज है। सानी लाशऊर तक रसाई हासिल करके मुश्किलात पैदा करने वाले मरहकात को जड़ से निकाल फेंका जाता है, जिससे जहन को सुकून मिलता है और दिल अपनी खोई हुई खुशी फिर से हासिल कर पाता है। माइंड पावर आर्टिस्ट के जेर एहतमाम ट्विन हब अरीना इस्लामाबाद के मरकजी हाल में हिप्नोथेरेपी के मुतल्लिक तकरीब का इनकाद किया गया। माइंड पावर आर्टिस्ट के CEO सूफी अवैस ने शुरका को ग्रुप हिप्नोथेरेपी का शानदार सेशन करवाया। हाज़रीन महफिल ने हिप्नोथेरेपी की चाशनी को दिल की गहराइयों से महसूस किया। माइंड पावर आर्टिस्ट की मेजबान नादिया नदीम अलवी ने बताया कि मुआशी मुश्किलात और जहनी परेशानी के इस दौर में हर शख्स को हिप्नोथेरेपी की जरूरत है। राना मकबूल अहमद, नेटो वन न्यूज़, इस्लामाबाद। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।